Honorable Chief Guest Ma'am, Honorable Chairman Sir, respected Principal Ma'am, all the guest members and all your teachers and students. Good morning. Today we are having one of the most important personality or chief guest here. Her name is Miss Sunita Khetwal. Miss Suman Khetwal. She is the additional judge of Pune. So she is a native of Bageshwar only. So I would like to say Chairman Sir and Principal Ma'am for lamp lighting and welcoming her with warm greetings. Yes, no, please. So, prayer lies God's prayer, it melts his heart. And for welcoming man, I would like to class 8 students for welcoming prayer. Before welcome song, I would like to Principal Ma'am to welcome the chief guest with the song and bouquet. Put your hands together, Rita.
Well performance given by class A. Be there for others, but never yourself behind. With this quotation, I would like to deliver the mic to the chairman sir to address us. Good morning to everyone. I am at 11 o'clock this time, and this is a great honor to us. So among us, from our areas, additional judge Suman Khetwal came to us, and we all heartfully congratulate to her and welcome to our school. And this is a very great achievement, especially for our areas and for us and for her and her families. And this is really a prestigious moment for us. And she got within a very difficulties, because we know how the toughness is going to be if anybody is going to be prepare herself or himself for any competition in that. And so, especially I would like to say to all the students, you must be think about it, because always I am saying to be you must be think about your career. What is the importance of your career? Suppose if you are taking this kind of the education, that means it should be the fruitful in your futures. For career, especially you have to decide, you have to choose, you have to take a right decision on the right time, on the right direction too. Then you can achieve your success. Always we are motivating you, always I am always saying to you. And so today, मोटिवेशंस की बहुत बड़ी स्रोत हमारे सामने आप सभी लोगों को लिए एक प्रेरणादायक, एक मील का पत्थर जो हमारे एरिया के लिए है। अब मैं सभी यहाँ के जो बच्चे हैं उनसे दरख्वास्त करना चाहूँगा, यू मस्ट बी गो फॉलो टू हर, बिकॉज दिस इज द रियली ए गुड अचीवमेंट्स फॉर अस। बाकी मैं ज़्यादा समय न लेते हुए यहीं पर अपने शब्द को विराम दूंगा, क्योंकि वो अभी बहुत शॉर्ट लिस्टेड है, बहुत जल्दी से कार्यक्रम बना हुआ है। क्योंकि आज सुबह जब मैं सुबह उठा तो मैंने जब ग्रुप देखा अपना, तो ग्रुप में मैसेज मिला मुझे कि आज एडिशनल जज पुणे सुश्री सुमन खेतवाल जी आज पधारने वाली हैं। तो बहुत जल्दी में हमने कार्यक्रम किया है। तो इस विषय में सुमन खेतवाल जी अपने बारे में, अपने संघर्ष के बारे में, अपने इस कैरियर के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त जानकारी आपको देंगे, और आशा करता हूं आप सभी लोग उन चीज़ों को मनन करें, सीखें, आगे बढ़ें, बिकॉज ऑल यू आर वेरी लकी, you are getting a very good pathway and good stage for the getting your success। क्योंकि उन्होंने GGIC बागेश्वर गवर्नमेंट स्कूल, जिनकी हालत आज बहुत खराब मानी जाती है, वहां से पढ़ाई करने के बावजूद भी आज एक एडिशनल जज के रूप में आपके बीच उपस्थित हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ में मैं सुश्री सुमन खेतवाल जी, एडिशनल जज पुणे सुमन खेतवाल जी को आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो 2 शब्दों से हमें अनुग्रहित करें। धन्यवाद। Thank you, sir. Don't judge me. You know only my name, not my story. With this quotation, I would like to deliver the mic to our today's chief guest, Ms. Suman Khetwal, ma'am.
Good morning, everyone. सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे यहाँ बुलाया और इतने शॉर्ट स्पैन टाइम में इतना सब कुछ अरेंज किया, ये बहुत बड़ी चीज़ है। भी इतने कम समय में आपको क्या बोलूँ, मुझे वो ही समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं शुरुआत करती हूँ। मेरा प्राइमरी एजुकेशन जो हुआ था वो प्राइमरी स्कूल से ही हुआ था, फुलडोरी गांव में। उसके बाद मेरा 12th तक का जो एजुकेशन हुआ है गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बागेश्वर से हुआ है। जब हम लोग 12th में होते हैं तो हमारे पास करियर गाइड नहीं होता है कि हमको आगे जाके क्या करना होता है। सबको कॉमन होता है, यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, लोगों के पास गाइड नहीं है, पेरेंट्स कम पढ़े लिखे होते हैं, तो हमको पता नहीं रहता है हमको क्या करना है। सबका कॉमन होता है कि बीए करेंगे, बीएससी करेंगे या बीएड करेंगे, नहीं तो फिर शादी हो जाएगी। तो जब से मैंने अपना होश संभाला था तब से मेरे मन में एक था कि मैं ऐसा कुछ करूं जिससे मेरे मम्मी पापा का नाम रोशन हो, और इसमें मेरे माँ बाप ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया है। तो मेरा 12th हुआ। 12th होने के बाद मैं मेरे पापा के साथ गई, वहाँ पर मैंने लॉ चूज़ किया। तो डिफ़िकल्टीज़ बहुत थी मेरे उसमें, लेकिन मैंने ठान लिया था कि मुझे करना है। तो जब मैंने करना शुरू किया तो मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, मैं करती गई और आज यहाँ तक पहुँची। इसके लिए मैं बोल रही हूँ कि इसीलिए मैं आप सबसे यही बोलना चाहती हूँ कि बच्चों को अगर अच्छा गाइड मिले तो वो भी कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर क्या है, बच्चों को अच्छा गाइड नहीं मिलता है, उनको पता नहीं रहता है उनको करियर में क्या करना है, कहाँ जाना है, उनके पास अवसर नहीं रहते हैं। पेरेंट्स कम पढ़े लिखे होने के कारण उनको गाइड नहीं कर पाते कि उनको आगे जाके क्या करना है। इसीलिए स्कूल ही एक ऐसा माध्यम है जहाँ से बच्चों को उनकी दिशा दिखे, उनको आगे कहाँ जाना है, क्या करना है। तो मुझे यहाँ पर आके ऐसा लगा कि ये स्कूल जा रहा है आगे, कि जिस शॉर्ट टाइम में सर ने मुझे यहाँ पर बुलाया, इतने शॉर्ट टाइम में उन्होंने ये सारा प्रिपरेशन किया, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि यहाँ के बच्चों को अवश्य ही एक अच्छा भविष्य मिलेगा और वो अच्छा करेंगे। एक यही बोलना चाहूँगी कि अगर आपकी चाह है, जहाँ चाह है वहाँ राह है। अगर आपको करना है तो आप कर सकते हैं। आपके मन में एक दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि मुझे करना है। मेरे करियर में मेरे माता पिता ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत साथ दिया। उनके साथ की वजह से, उनके त्याग और बलिदान की वजह से ही मैं आज यहाँ पर हूँ। जो कुछ भी हूँ मैं उनकी वजह से ही हूँ। उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मेरा साथ दिया। मुझे कभी मेरे करियर में उन्होंने डिसअपॉइंट नहीं किया। मुझे नहीं बोला कि तू ये मत कर, तुझे जो करना है तू वो कर। उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। तो उनके सपोर्ट के कारण मैं आज यहाँ हूँ। और मेरी माँ का भी बहुत बड़ा त्याग और बलिदान है। मेरी माँ ने जितना त्याग दिया है आज तक, जितना बलिदान किया अपने बच्चों के लिए, उतना शायद कोई ही माँ करती होगी। तो इन शॉर्ट शब्दों में आपको धन्यवाद देती। धन्यवाद। Thank you so much, ma'am, for motivating our students with your inspirational words. Now, I would like to invite the students for interaction with ma'am. You will ask questions regarding your career-oriented questions. Whatever you are having with ma'am, she will answer. Okay? The medium may be anything, beta, either Hindi or English. Students ask, beta. Good morning, ma'am. Good morning. I want to ask you that, Bageshwar is a very interior area, and as today you are a very successful and you are self-dependent. So, how your journey has been, and how you get motivated yourself to achieve your goal? Thank you, ma'am.
दिस इज़ वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली। मेरा मोटिवेशन, मेरी इंस्पिरेशन मेरी माँ है। मैं जब छोटी थी, मैं एक बार मेरी माँ के साथ खेत में गई थी, तो वो धान की गुड़ाई कर रही थी, बहुत धूप हो रही थी वहाँ पर। तो मैंने मम्मी से बोला कि अब नहीं करते हैं, घर पे जाते हैं। तो मेरी मम्मी ने कहा कि अगर हम इसको नहीं करेंगे तो ये नहीं होगा, ये हमारी मर्जी का है, हमारी मर्जी का है, हम करेंगे तभी होगा। तो जब भी मुझे मेरे करियर में ऐसी निराशा हुई, तो मैं मेरी माँ एज ए इंस्पिरेशन में अपनी माँ को लेती थी कि मेरी माँ कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। वो दिन भर धूप में खेत में काम कर सकती है, तो मैं बैठ के पढ़ाई क्यों नहीं कर सकती हूँ। तो मेरी माँ मेरी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है। Thank you. Any other questions? Juniors, seniors? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। माय क्वेश्चन फॉर यू दैट जैसे कि हम 11th और 12th में बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, तो हम हर सब्जेक्ट को टाइम नहीं दे पाते हैं, तो हमको कैसे टाइम मैनेज करना चाहिए, ये प्लीज अगर आप बताएंगे तो। यस, 11th-12th में हर एक सब्जेक्ट इक्वली इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आपको कोई सब्जेक्ट वीक जाता है तो अपने टीचर से आप पूछ सकते हैं, और आपको करियर कौन सी दिशा में करना है, उस हिसाब से आप अपना उस सब्जेक्ट को ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट, पढ़ाई के लिए आपको हर सब्जेक्ट को इक्वली टाइम देना होता है। अगर आपको समझ में ना आए तो आपके टीचर आपको मेंटर करते हैं, आप उनसे ले सकते हैं सलाह। थैंक यू मैम। Good morning, ma'am. My name is Riya Guriya from class 10, and my question for you is: as a being of a student for preparing a competition exam, there are many problems and things that we think so we should quit or do nothing for it. And what was the why you were pursuing the law? So what was your most inspiration that you felt कि I have to do it? एक्चुअली मैंने बोला है पहले ही कि मेरा बचपन, जब से मैंने होश संभाला तब से मेरा ये था कि मैं इस दुनिया में आई हूँ तो अपने मम्मी पापा के लिए कुछ तो करूँ, ऐसा करूँ कि उनका नाम ऊंचा हो। और मेरी इंस्पिरेशन, मेरे माँ पापा ही मेरी इंस्पिरेशन है। मैं उन दोनों की हार्डवर्क से ही मैं आगे जाती हूँ कि वो लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती। और पढ़ाई के मामले में मैंने हमेशा पढ़ाई को बहुत इम्पोर्टेंस दिया है, और लॉ में भी मैंने अपनी पढ़ाई को बहुत इंपॉर्टेंस दिया है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में बोले तो उसमें बहुत स्टडी करना पड़ता है, आपको अपना गोल फिक्स करना पड़ता है कि हमें यहाँ तक जाना है। उसके लिए हमको बहुत सारी चीज़ें, सोशल लाइफ, सोशल मीडिया, ये सारी चीज़ों से भी हमको दूर रहना पड़ता है। खुद को डिसिप्लिन रखना पड़ता है कि हमको ये करना है और यहाँ तक ही पहुँचना है, इससे आगे भी हमको जाना है। तो ये जो सारी चीज़ें हमको डिस्ट्रैक्ट करती हैं, उनसे हमको दूर रहना, थोड़ा खुद को दूर रखना पड़ता है। थैंक यू। Respected ma'am, good morning. I want to ask you that my name is Niharika Bhagri. I am from class 10, and I want to ask you that how do you felt when you have heard the news that you have been selected, and what is your parents' reaction? And before the examination, how many times in a day you have been studied for it? एक्चुअली स्टडी का बोलूँ तो मैं स्टडी में बहुत जब से मैंने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की शुरू किया था तो मैं बहुत डिसिप्लिन थी स्टडी में। मैं 4 बजे उठती थी, 4 बजे से लेके 6 बजे तक मैं पहले पढ़ती थी। 6 बजे मेरे पापा मेरे को चाय ला के देते थे, फिर 6 से 8 में वापस स्टडी करती थी और 9 बजे नाश्ता करती थी। 10 से 12 वापस मैं स्टडी करती थी, 1 बजे लंच करके वापस मैं 2 से 5 या 6 बैठती थी, थोड़ा ब्रेक लेके वापस 2 घंटा में पढ़ती थी। ये मेरा 3rd अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा 2019 में था, वहाँ पर भी मैंने अच्छा स्कोर किया था, बट उस टाइम मेरा लक नहीं था। 20 में भी मैंने किया था, वहाँ पर भी मेरा नहीं था वहाँ पर। अभी 22 में जब पोस्ट आया उस टाइम हो गया मेरा, मतलब मेरा लक शुरू हो गया वहाँ से। जो मेरा पिछला हार्डवर्क था वही इसमें काम आया। ज़्यादा स्टडी मैंने लॉकडाउन के टाइम पे की थी, लेकिन लॉकडाउन के टाइम का जो एग्ज़ाम आया उसमें मैं सिलेक्टेड नहीं थी। उसके बाद के एग्ज़ाम में मैं सिलेक्टेड थी क्योंकि मेरा पिछला हार्डवर्क था। उस टाइम मैंने इतना स्टडी नहीं किया था क्योंकि मेरा ऑलरेडी 2-3 साल से स्टडी चल रहा था। तो 2022 में जो रिजल्ट मेरा आया 10 दिन पहले, तो उसमें मैं लिस्टेड नहीं थी।
प्री पास किया, मेंस में मैं लिस्टेड नहीं थी, वापस 10 दिन बाद एग्जाम था। वो 10 दिन मेरे रोने में गए, फिर भी मैं कैसे वैसे करके एग्जाम देने गई प्री वापस। तो मेरा उस टाइम प्री दिया तो रिजल्ट मेरा क्लियर था। फिर मैंने मेंस दिया, मेंस भी मेरा हो गया। उसके बाद मैंने इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू भी मेरा हो गया। जब मेरा रिजल्ट आया तो मैंने सबसे पहले मेरे पापा को कॉल किया। पापा रो रहे थे, तो मेरे मेंटोर थे वहाँ पे, तो उनने मुझे बोला था कि आपकी लाइफ में सबसे बड़ा दिन वो होता है जिस दिन आपके माँ बाप के आंखों से आंसू आते हैं। तो वो दिन मेरे लिए सबसे बड़ा था, क्योंकि मैंने कुछ अचीव किया था अपने मम्मी पापा के लिए। तो अभी तो ये शुरुआत है, अभी और बहुत कुछ करना है। थैंक यू। Thank you, ma'am, for giving the answer. थैंक यू मैम, वी आर कनेक्टिंग विद योर वर्ड्स। जैसे आपने बोला कि मेरे माँ बाप के आंखों में आंसू थे, लाइक व्हेन यू एंटर टू आवर स्कूल, हमारे भी जो ये in our body our goosebumps arises because we see such an inspirational personality here। ऐसे देख के मैम खुशी होती है कि बागेश्वर जैसी जगह से निकल के इंसान इतना सक्सेसफुल होता है। बेटा, ये आई विल विश यू ऑल दैट ये वन डे वन ऑफ यू, ये मैनी ऑफ यू विल कम लाइक दैट टू आवर स्कूल। ओके, यस और नो? एनी क्वेश्चंस from juniors? Good morning, ma'am. I am Kavya Khekar from 9th standard. And my question is, it was your dream or it was your parents' dream to go in this field, and how you got interest in law? एक्चुअली ये मेरा ही सपना था। जब मेरा 12th हो गया था तो मुझे भी डाउट था कि अब मैं किस फील्ड में जाऊँ। मैं बीए करूँ, बीए करके बीएड करूँ, एमए करूँ या क्या करूँ। मुझे मेरे सारे फ्रेंड्स थे, सब बीए बीएससी इसी उसमें जाने वाले थे, लेकिन मुझे कुछ अलग करना था। तो मेरे पापा मुझे अपने साथ लेके गए पुणे में। वहाँ जाके मैंने लॉ चूज़ किया। लॉ चूज़ इसके लिए किया क्योंकि उसमें करियर बहुत वास्ट है, लॉ का करियर बहुत वास्ट है। उसमें सिर्फ आप एडवोकेट या फिर जज ही नहीं बन सकते, बाकी और भी चीज़ें उसमें हैं। लॉ का करियर बहुत वास्ट है, इसके लिए मैंने लॉ चूज़ किया। और फिर मैं आगे बढ़ते ही गई कि मुझे मेरी दिशा दिखती गई कि मेरा लॉ कंप्लीट हो गया है, अब मुझे प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के साथ साथ मुझे जुडिशरी प्रिपेयर करना है और मुझे एज अ जज मुझे खुद को वहाँ देखना है। तो मैं उसी दिशा में अपनी तैयारी करती गई और फिर खुद को मोटिवेट करती गई कि मुझे यही करना है और इसी फील्ड में आगे बढ़ना है। Thank you, ma'am. थैंक यू। Good morning, ma'am. Good morning. My name is Divyanshi from class 9. तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जब आप यहाँ इस सफ़र में आई, लॉ की उसमें आई, तो आपने किन किन कठिनाइयों से आप गुजरी? सबसे पहली कठिनाई जो थी, मैं 12th तक हिंदी मीडियम से पढ़ी हुई थी, तो मेरा डायरेक्ट मैं कन्वर्ट हो गई थी इंग्लिश मीडियम में। तो मेरा पहला टास्क वहाँ से शुरू हो गया था। शुरू ऐसे हुआ कि मेरा एडमिशन हुआ। एडमिशन होने के 1 महीने बाद मेरे पापा की तबीयत खराब हो गई, उनको हार्ट अटैक आया। वो मैंने घर पे किसी को भी नहीं बताया था, मैं अकेले सफ़र कर रही थी। मेरे पापा, मैं और मेरा भाई, हम लोग पुणे में थे। तो मेरे पापा 4 दिन आईसीयू में थे, मैं उनसे मिली नहीं थी। वो तो भगवान का शुक्रिया है कि मेरे पापा के फ्रेंड्स अच्छे थे, उनने हमें कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि हमारे पापा आईसीयू में हैं। उनने हमको ये भी नहीं बोला कि कितने एक्सपेंसेस हुए हॉस्पिटल में, सारा चीज़ उन्होंने देखा। जब मैं मेरे पापा को 5 दिन बाद मिली तो हम दोनों सिर्फ एक दूसरे को देख के रो रहे थे, एक शब्द नहीं था। रोज मेरी मम्मी मेरे से पूछती थी कि पापा बात क्यों नहीं करते, तब मैं मुंह में रुमाल डाल के रात को मम्मी से बात करती थी और बोलती थी कि पापा का काम ज़्यादा है, वो सुबह जल्दी जाते हैं और रात को लेट आते हैं, खाना खा के सो जाते हैं। जब मेरे पापा का डिस्चार्ज हुआ उसके दूसरे दिन ही मेरा भाई गिर गया, उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया। तो मेरे को इतनी डिफिकल्टीज हुई कि फर्स्ट ईयर में पहले 2 महीने में ही मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। तो फर्स्ट सेमेस्टर था, मैं कॉलेज नहीं गई और वैसे ही मेरा फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम आ गया। मैंने हिम्मत करके एग्जाम तो दे दी, लेकिन मैं फेल थी। अब मैंने सोचा सब कुछ ठीक तो हो गया है, अब मुझे पढ़ाई करनी है, आगे बढ़ना है, पीछे नहीं देखना है, मुझे मेरा ईयर डाउन नहीं होने देना था। तो मैंने दोनों सेमेस्टर एक साथ क्लियर किए और वहाँ से मैं जो मेरी जर्नी शुरू हुई वहाँ से मैंने पीछे नहीं देखा, बस मैं आगे बढ़ती ही गई। थैंक यू। Morning, ma'am. Good My name morning. is Vivek from class 10.
So I want to ask you, what was your reaction and what was your feeling when you have not selected in 2 attempts of law examination? एक्चुअली दिस इज़ वेरी गुड क्वेश्चन. जब मेरा पहला अटेम्प्ट था, फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने प्री क्लियर किया था. मेरा मेंस का भी एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ था. मेंस का एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ था, लेकिन लिस्ट में मेरा नाम नहीं था. उस टाइम कट ऑफ था 101 और मुझे मार्क्स मिले थे 109. तो मुझे डाउट आया कि मेरा 109 होते हुए भी मैं सिलेक्ट क्यों नहीं हुई. तो मैंने मेरी आंसर शीट्स मंगवाई. जब मैंने मेरी आंसर शीट्स मंगवाई तब मुझे पता चला कि मुझे एक सब्जेक्ट में कम स्कोर है, जिसकी वजह से मैं डाउन हूँ. एग्रीगेट नहीं बन रहा था, एक में स्कोर हाई था और एक में कम था. तो मुझे ऐसा लगा कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में मेंस तक पहुंच सकती हूँ, तो मैं कर सकती हूँ, ये चीज़ मैं कर सकती हूँ. तो फिर मैंने सेकंड अटेम्प्ट दिया. मेरा सेकंड अटेम्प्ट भी बहुत अच्छा था. मैं प्री पास हो गई. फिर लॉकडाउन लग गया. लॉकडाउन के पूरे एक साल बाद मेंस का एग्जाम हुआ. मैंने लॉकडाउन में बहुत अच्छी पढ़ाई की थी, तो उस टाइम भी मेंस का पेपर बहुत अच्छा था, लेकिन रिजल्ट नहीं आया. मेरा लक नहीं होगा शायद. उस टाइम बोलते हैं ना, जब तुम्हारा वक्त आता है तभी होता है. तो उस टाइम भी मेरा नहीं हुआ. वापस मैंने फॉर्म भरा था. विद इन 10 डेज ही मेरा एग्जाम था. मैंने पढ़ाई कुछ की नहीं थी उस टाइम. पिछली पढ़ाई की वजह से मैं आगे बढ़ी, क्योंकि मैंने पिछला मेहनत किया था, जिसकी वजह से मुझे 2022 में सफलता मिली. तो वो मेरा पिछला ही हार्डवर्क था जो मुझे आगे लेकर गया. तो कभी भी अपनी मेहनत से हताश नहीं होना है. उससे और ये सोचना चाहिए कि हम इसके बहुत करीब हैं, हम कर सकते हैं ये चीज़. अगर हमें विल पावर है तो हम कर सकते हैं. थैंक यू. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Successful people have many failure stories. Can you tell why? Students, I repeat my quote. Successful people have many failure stories. Reply. Why they have failure stories? Because they attempt. Attempting any exam, attempting any preparation is the first step of getting success. Okay, with these words, I would like to hand over the mic to Principal Ma'am for thanking speech. Thank you, ma'am. First of all, a very good morning to our Honorable Chairman, sir, and among us, our distinguished Chief Guest, Ms. Suman Khetwal, Additional Judge of Pune, and all the other respected guests, and all the dedicated teachers, and my lovely students. Good morning, everyone. So the students, we are with great honor today that ma'am, Ms. Suman Khetwal, additional judge. So this is a very proud moment for us that she are with us and she have accepted our gracious invitation in a short time. And we are also, we are not aware about that, but still she have just accepted and so given honor to us to welcome to her in our school. And we are very honored and we are very proud also that so the ma'am is among us here and she has shared so many her experiences and her insights, stories with us of the achievements and success and with our students and the teachers, and it is really great honor for us. So that's why I am very thankful to ma'am, and so also hoping that the students are just satisfied with the ma'am's answers, and after just listening to ma'am, so you will also apply in your life all these that things the ma'am has just got the achieve, and by this her great determination and great her hard work, है ना. तो जैसे कि मैम ने कहा कि मैम ने बहुत हार्ड वर्क किया, बहुत सारी परेशानियाँ फेस की उसके बाद, और लेकिन उनका जो आप एक देखोगे चीज़ें कि परेशानियाँ और हार्ड वर्क सभी फेस कर रहे हैं, करते हैं कि नहीं, लेकिन एक आपके ऊपर आपका एक ग्रेट डिटर्मिनेशन, आपकी जो विलिंग पावर होती है जो मैम ने कहा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट और नॉट. तो वही डिटर्मिनेशन आप लोगों ने भी लेना है, और एज अ इंस्पिरेशन मैम आज हमारे बीच यहाँ पर हैं, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है, और हमें चाहती हूँ कि फ्यूचर में भी मैम यहाँ आए और
और एक बार फिर से हमें उनका स्वागत करने का, बहुत अच्छी तरह से स्वागत करने का मौका मिले। आज शॉर्ट टाइम हो गया, बट फिर भी आज हमारे बीच वो आई हैं और ये हमारे लिए एक बहुत सम्मानपूर्ण बात है। तो जो कि हमारे बच्चों के लिए स्पेशली हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी, हमने मैम को इसलिए इनवाइट किया यहाँ पर ताकि मैम हमारे बीच आए यहाँ और हमारे बच्चों को, नन्हे मुन्ने बच्चे जो आपके गांव से बिलोंग करते हैं, आपके एरिया से बिलोंग करते हैं, ये भी आपकी तरह बहुत आगे जाएं और बहुत आगे ऊंची जो है इनको पोस्ट मिले और जिससे हमारे गांव का और ये समाज का भी एक इस तरह से क्या हो विकास हो पाए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का जो चीफ गेस्ट हैं ऑनरेबल चेयरमैन सर और मैम का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वो यहाँ हमारे बीच आई और अपना मूल्यवान समय हमें यहाँ और हमारे बच्चों को दिया और जिससे हमारे बच्चों ने काफ़ी कुछ सीखा और आगे उसे अपने लाइफ में भी उसे अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों आज उनकी समय की कमी के कारण मैम को कहीं और जाना है, तो आज इतना ही। तो अगली बार जब मैम फिर से वापस आएंगी तो हमारे बीच बहुत सारी चीज़ें आपको बताएंगी, करियर ओरिएंटेड चीज़ें और कैसे कौन से सब्जेक्ट उन्होंने लिए, तो इससे भी जानकारी आपको मिल सकती है। तो धन्यवाद, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। कहते हैं सीखने की कोई उम्र नहीं होती, लेकिन कुछ भी सीखने की एक सही उम्र जरूर होती है। With this notation, I would like to thank you, ma'am, for giving us precious time to our school. Thank you, ma'am. We are blessed to hear you.